جی ہمارا آج کا لیکچر ہے اردو بے میں مضمون علم کی سائنس کے کرشمے۔ کرشمہ بیٹا یہاں پر انڈر لائن کر لیں سارے بچے کرشمے لفظ کو۔ یہ کرشمہ کی جمع ہے۔ اس مضمون کا عنوان ہے سائنس کے کرشمے، اور آپ کو عنوان کا مطلب آنا چاہیے۔ کرشمے کا مطلب آپ لکھ لیں حیرت انگیز بات، عجیب سی بات، حیرت انگیز بات یا انوکھی۔ تین مطلب ہیں اس کے: انوکھی بات، حیرت انگیز چیز، ٹھیک ہے؟ تو جو آپ کو ایزی لگتا ہے آپ وہ یاد کریں گے، اور پھر میں اس کا ایک، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹ بنا دیا کرتی ہوں، پھر اس طرح اس کا ٹیسٹ بنے گا، پھر آپ سے ان الفاظ کے معنی بھی پوچھے جائیں گے۔ علم کی بہت سی شاخیں ہیں۔ شاخیں جو ہے وہ شاخ کی جمع ہے، مطلب کہ علم بہت زیادہ سمجھ لیں اس کی مثال درخت کی سی ہے۔ جس طرح درخت کی شاخوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اس طرح علم کی جو برانچز ہیں، جو اس کے پہلو ہیں، جو اس کے رخ ہیں، انداز ہیں، شکلیں ہیں، وہ کاؤنٹ لیس ہیں، بہت سارے ہیں۔ علم کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے اہم سائنس ہے۔ 20ویں صدی کو یہاں پر 20ویں کے یہ غائب ہو گیا ہوا ہے۔ 20ویں میں نون گنے کے ساتھ آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو کریکشن کر لیں، 20ویں ہے۔ 20ویں صدی کو ایجادات نہیں پڑھنا ہے، ایجادات پڑھیں گے، تے پڑھیں گے، تے کی آواز آنی چاہیے۔ ایجاد کی جمع ہے، ایجادات کی صدی کہا جاتا ہے۔ اس صدی میں دنیا نے سائنس کے میدان میں حیران کن ترقی کی ہے۔ سائنس کی وجہ سے انسانی زندگی بے حد آسان اور پر آسائش ہو گئی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہر جگہ سائنس کے کارنامے نظر آتے ہیں۔ بقول شاعر ہے جستجو کے خوب سے خوب تر ہے کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھے جا کر نظر کہاں۔ خوب سے خوب تر یعنی کہ ایک لفظ مس ہو گیا ہے خوب سے کا، کے آگے لگے گا خوب سے، پھر آئے گا خوب تر ہے کہاں۔ تو یہ شعر تھوڑا سا اس میں بھی مسٹیک ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا اس پیراگراف کی انڈرسٹینڈنگ دے دوں کہ علم کی جو بہت ساری شاخیں بیان ہوئی ہیں، اس میں علم جو ہے وہ معاشرتی بھی ہے، فائنانس کے لحاظ سے بھی ہے، یعنی معاشیات، سماجیات، تو یہ سارے علوم جو ہے وہ علم میں آتے ہیں۔ اس میں مذہب، آرٹ، ہسٹورک پلیسز بھی شامل ہیں۔ محمد ذیشان بیٹے میں ابھی آپ کو لیتی ہوں، آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، ویڈیو آف کر لیجئے۔ ہاں جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ علم کی جو بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں مذہب، آرٹ، ادب، سماجیات، سیاسیات اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں ہم نے جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ صرف سائنس ہے۔ سائنس کی ترقی کا آغاز 20ویں صدی میں ہو چکا تھا، اور ابھی تک اس کا سلسلہ رک نہیں رہا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ نے کیسے تہلکہ مچا دیا، اور اس کی جو سائنس کی جو ترقی ہے وہ کسی طور پر تھمنے میں نہیں آ رہی۔ آپ اپنے آنکھوں سے اس چیز کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اگر یہ ہم آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے اگر یہ پیراگراف پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی اتنی بات، ہمیں صرف وہ چند چیزیں نظر آتی جو الیکٹرانکس کی شکل میں ہمارے سامنے تھی۔ لیکن جب سے انٹرنیٹ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً سائنس کی جو ترقی ہے وہ کس قدر حیرت انگیز ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کا وہ دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں تھوڑا سا پیچھے جا کر کہ سائنس کی ترقی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، سائنسی ترقی کا آغاز یورپ کی صنعتی ترقی سے ہوا۔ صنعتی ترقی جو ہے وہ ہے مشینری، صنعت، کارخانے، فیکٹریاں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ انڈر لائن کر لیں، اس کے آپ لکھ لیں کہ کارخانے، صنعتی کو انڈر لائن کر کے کارخانے کا لفظ لکھ لیں، جس میں دنیا نے سائنس کے میدان میں بہت سی حیرت انگیز ایجادات کی ہیں، جن میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، گاڑیاں، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز اور کمپیوٹر اہم ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ نے جو سیٹلائٹ وغیرہ ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم اس کو موجودہ دور میں دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ بھی سائنس کی کوئی عجیب سی دریافت ہے یا کرشمہ ہی ہے۔ یہ سائنس کا ہی کرشمہ ہے کہ آج کل انسان کائنات کی بڑی بڑی قوتوں کو، یہاں پر انڈر لائن کر لیں، یہ قوموں نہیں ہے، قوتوں کو مسخر کر چکا ہے۔ سب بچے اس کو انڈر لائن کر کے قوتوں لکھ لیں، مسخر کر چکا ہے۔ سائنس کی بدولت آج انسان چاند کے علاوہ دیگر سیاروں پر بھی قدم رکھ چکا ہے، جیسا کہ آپ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ مارس پر انسان جانے کی ایک دعوے کر رہا ہے۔ سائنس کی پہلی ایجاد پہیہ ہے۔
जिसने आमदो रफ्त में सहूलतें मुहैया करके तरक्की की नई राहें खोल दी हैं। यहाँ पर दी नहीं आएगा, दी है, खोल दी हैं, इसको भी अंडरलाइन करना है, ये भी मिस्टेक। आज महीनों का सफर दिनों में और घंटों का सफर लम्हों में तय हो जाता है। बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन की जान ने फासले समेट दिए हैं। फासले समेट देने का मतलब है कि जहाँ पर हम महीनों ट्रैवल करते थे, आजकल हम चंद घंटों में पहुंच जाते हैं वहाँ पर, जहाँ पर किसी भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में। और इसके अलावा हमारे अगर मुल्क बड़ा है तो बिजली से जो चलने वाली बुलेट ट्रेन है, आप इसकी जो मौजूदा शक्ल है वो ऑरेंज लाइन की शक्ल में देख सकते हैं कि वो पहले कभी जब किसी ने रेलवे स्टेशन जाना होता था तो उसको तकरीबन 2-2.5 घंटे सफ़र करना पड़ता था, लेकिन आज 15 मिनट में हम रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। या ये लाहौर की ऑरेंज लाइन की मैं बात कर रही हूँ कि जो 15 मिनट में आपको रेलवे स्टेशन पहुँचा देती है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि बिजली से चलने वाली जो ट्रेन है वो किस तरह फासलों को समेट रही है। ऐसे हवाई जहाज भी ईजाद हो गए जो खुश्की और पानी दोनों पर चल और उतर सकते हैं। साइंस की बदौलत पैगाम रसानी में इनकलाब आ चुका है। पैगाम रसानी कहते हैं मैसेज, SMS, किसी को मैसेज देना, कोई बात पहुंचानी। डिश एंटीना, केबल नेटवर्क और इंटरनेट ने तफरी और मालूमात के बेशुमार दरवाजे खोल दिए हैं। दुनिया में भर में होने वाले खेलों के मुकाबले बराह रास्त नशर किए जाते हैं, जिन्हें शायकीन यानी कि खेलों का शौक रखने वाले घरों में बैठकर आराम से देखते हैं। इंटरनेट की बदौलत दुनिया के एक खित्ते में रहने वाले इंसान दुनिया के दूसरे कोने में बसने वाले इंसान से 24 घंटों में किसी भी वक्त राब्ता कर सकता है। और ये आप अपनी इसको प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं इस चीज़ को। साइंस की सबसे हैरत अंगेज इजाद कंप्यूटर है। पहले ये सिर्फ हिसाब किताब करने वाली एक सादा सी मशीन थी। इसका दायरा कार अब इसका दायरा कार इंसानी जहन की तरह वसी है। आज इंसान ज़िंदगी का हर शोबा कंप्यूटर का मोहताज है। बिजली की इजाद ने इंसानी ज़िंदगी को बेहद आरामदेह बना दिया है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि इंसानी ज़िंदगी में बिजली कैसे अमल दखल कर रही है कि इतनी सख्त सर्दी के बावजूद बिजली के हीटर जो हैं वो कमरों को गर्म कर देते हैं और इंसान जो है वो उसको इतने मौसम की सख्ती को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। और इसी तरह अगर सख्त गर्मी का मौसम है तो एयर कंडीशनर लगाकर आप लोग इसमें आराम से अपनी मौसम की सख्ती को बर्दाश्त कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। ऐसे रोबोट भी ईजाद हो गए जो इंसानों की तरह काम करते हैं। इन सब इजादात के बावजूद भी इंसान आराम से नहीं बैठ गया, बल्कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाने की तोगदो में लगा है। एटमी तवानाई के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। एक एटम बम, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन बम पूरी दुनिया को एक लम्हे में तबाह करने की सलाहियत रखता है। दुनिया के बहुत से ममालिक एटमी हथियार बनाने पर बेशुमार दौलत खर्च करें, जबकि ये दौलत इंसानी फलाह पर खर्च होनी चाहिए। एटमी तवानाई ने मेडिकल की दुनिया में भी इनकलाब बर्पा कर दिया है। लेज़र की मदद से बहुत सी खतरनाक बीमारियों पर काबू पाया जा रहा है। साइंस के ये तमाम कारनामे देखकर लगता है कि इंसान एक दिन सितारों पर कमर डाल ही लेगा। कमर एंकर को कहते हैं, जो जिसके साथ एक रस्सी लटकी होती है और बुलंदी पर जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो बच्चे हाइकिंग के शौकीन हैं उन्होंने देखा होगा इस आले को कि किस तरह कोह पे माँ जो है वो एंकर करके तो इसको ऊपर चढ़ाई पहाड़ को सर कर लेते हैं। यानी कि बहुत सी मुश्किल काम है किसी बुलंदी पर जाना। तो यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, इसको इशारतन इस्तेमाल किया गया है कि इंसान ने सितारों पर जाने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो ईजाद कर ही लेगा। जैसे कि आप समझते हैं कि हम लोग आजकल जो सैटेलाइट है या इस तरह की कोई मशीनें हैं जिसके ज़रिए हम अपने स्पेस में एक अर्थ से क्रॉस करते हुए दूसरे सैयारों पर या किसी और सितारे पर जा रहे हैं। यानी कि ये साइंसी तरक्की है कि जिसमें हम ना सिर्फ ज़मीन बल्कि कायनात में बिखरे हुए दूसरे सैयारों पर भी ज़िंदगी की जो एक आगाज़ है, ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से रिहाइश छोड़कर किसी और सैयारे पर रहने के जो दावे हम सुन रहे हैं वो आज आप देख रहे हैं कि वो हो रहे हैं। और ये सारा का सारा जो है वो सिर्फ साइंस की तरक्की की ही वजह से है। बकौल शायर झूले, यहाँ पर 2 डॉट मिस हैं, एक लगा हुआ है क्योंकि ये झूले नहीं है, ये छूले का लफ्ज़ है। 3 डॉट आप यहाँ पर लगा लें और ये जो 1 डॉट है इसको बेशक ब्लैक को कर लें। छूले ना दामन बंदगी कहीं खुदाई का, मेरा जे इर्तकाए बशर देखता हूँ। ये शायर कह रहा है
कि साइंस की तरक्की देखकर लगता है कि इंसान जो है वो इतना ऊपर चला जाएगा कि वो जो कि हम समझते थे कि कुदरत के काम है वो इंसान ने अपने हाथों में ले लिए है। और इसकी आप मिसाल देख लें, जैसे कि आजकल बायोलॉजिकल वेपन्स का हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं चर्चा कि इंसान जो है वो आर्टिफिशली वेदर को कंट्रोल कर रहा है, बीमारियां फैला रहा है। यानी कि वो काम एक पावर कर सकती थी, जैसे कि हमारा ईमान है कि वो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन सब लोग तो इस बात पर नहीं हैं। कुछ लोग इसको नहीं भी मानते हैं। हमारे पता कि मुसलमान सिर्फ ऐसे हैं, इस्लाम ही सिर्फ ऐसा मज़हब है जहाँ पर खुदा को एक पावर माना जाता है, उसको एक खुदा माना जाता है। बाकी बहुत सारे मज़ाहिब हैं जो इसको डिनाई करते हैं। तो ये लोग जो हैं वो खुद ही अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साइंस की ये तरक्की के जो कुछ तो फ़ायदे हैं हमें, और उसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हम देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट और ख़ास अल्फाज हैं इस मज़मून के अंदर वो है शाखें, इजादात, आसाइश, सनती, पैगाम रसानी, इनकलाब, डिश एंटीना, शायकीन, राबता, मोहताज, कंप्यूटर, एटमी हथियार, मेडिकल, बीमारियों, कमंद, बराह रास्त। ये सारे अल्फाज आपने ना सिर्फ बोलना सीखने हैं बल्कि इनकी लिखने की भी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, ताकि अब जब आपको इमला करवाई जाए तो आपको ये आसानी से लिखा जाए आपसे, और आपके अंदर एक महारत आ जाए कि आप इसको लिख सकते हैं।